So first thing first, what you have to keep in mind is that you are not reading the S1 and S6 statements firstly. At first, your duty as a serious defense aspirant in CDS is to read the options. Read the options. Second trick, you would look deeply and precisely at the options which have common letters either starting with it or ending with it. For example, if the options are like P Q R S or Q R P S or S Q P R or P R Q S, telling you most probably either this is the answer or this is the answer. Not 100%, but 90 to 95% of the time the answer is either this one or this one. Trick number 3, connectors. What are connectors? Words which connect to each other, words which makes one thing connected to another thing. For example, not only, but also, either or, neither nor. Apart from it, we also have conjunctions such as and, because, however. Apart from that, etc. But could also be there. So whenever you see these words and or however or apart from it or but, you should get a check that why is this word present in the sentence, any of the sentence. Now coming to the fourth trick. The fourth trick is synonyms. It does bring importance while solving the S1, S6 type questions. How? Look for the words which are repeated in some or the any sentences. For example, if a word is there big and another sentence also has a word big, there are maximum possibility and chances that both the sentences would follow each other. मतलब दोनों ही sentences एक दूसरे के आस पास होंगे, करीब होंगे. ये सिर्फ ऐसे एग्जैक्ट वर्ड्स से ही नहीं होते हैं, इनके सिनोनिम्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर बिग की जगह पे आया लार्ज, या फिर एनॉर्मस, या फिर मैमथ, या फिर जायजेंटिक, तो भी इक्वली वर्केबल है. नाउ नेक्स्ट ट्रिक and very important trick. The trick is cause and effect. You have to understand the crux, the meaning while solving the S1, S6 questions. What exactly does it mean? What is the context of
the sentences, what exactly they are trying to convey or say, what is the cause in the sentence and what is the effect of it, कि पहली चीज क्या है या प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर प्रॉब्लम क्या है और उसकी वजह से क्या होगा. This is very much important. Now all of these are going to make sense when I'll help you solve certain questions by proving these tricks, and thereafter I would suggest you to at least solve these type of questions from the previous year question papers. And if you feel that you don't have enough of time to download it and then solve it, then you can take it from me. I have already collected it and gathered it at a place. You can comment down below and I'll send you. So let's see the first question. The first question say, option D is not visible. Let me write it. It is RSPQ. RSPQ. Now, our first responsibility is not to read S1 and also S6. No. Then what? We have to read the options firstly. Here. So after looking at the options, we have here idea that Q and Q are repeated, which means 90 to 95% chances are there that answer could be between the two. But I'm also telling you that 5 to 10% of the time the answer is something else, and in that type of question, either the question is very easy to solve or very difficult to solve, and we do get a sense that yes, these two with the repeated letters, alphabets are not the answers and something else is answer. We get the instinct because these sentences, they do not align with each other and they don't actually make perfect sense. I'll tell in the video further how to approach those sentences as well when all the options are different. So firstly, let us see how does it work. Now I know that either option A or option C is gonna be the answer. Let me read the statement number 1. It says, what soda water is composed of may see for yourself if you watch your glass at it stands on the table after you have slaked your first thirst. Now I know that it is going to be started with Q. So let's read Q. You will see that it is separating into two different things. One is liquid and a gas. Now see, in first sentence they talked about soda water and they talked about the composition of it, and thereafter when we went to Q, हमें ये पता चला कि इस सेंटेंस में ये बोला गया है that you will see it. अब ये बताइए कि ये it किसके लिए आया है यहाँ पे. This it is for what? कोई तो सब्जेक्ट होगा ना, कोई तो नाउन होगा जिसको इसने रिप्लेस किया हुआ है. नाउ ये आपने ये शब्द बहुत फोकस करना है इन शब्दों पे. पहला शब्द he, she, they, it. डेमोन्स्ट्रेटिव पे आपको फोकस करना है. जितना मैं सिखा रही हूँ बस उतना सीख गए तो पूरे सॉल्व हो जाएंगे 10 on 10. डेमोन्स्ट्रेटिव पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है. दिस, दैट, दीज, दोज, ये शब्द. अपार्ट फ्रॉम बाकी के ट्रिक्स यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 more ट्रिक्स. थोड़ा माइंड में लेके चलना. तो हम यहाँ पे आ गए थे इट. ये इट किसको रिफ्लेक्ट करता है? सोडा वाटर, विच मीन्स हम सही जा रहे हैं. क्यू ही पहले आएगा. तो बोल रहे हैं आगे क्यू वाले सेंटेंस में कि इट यानी कि ये जो सोडा वाटर है ये सेपरेट होता है दो चीजों में. पहला है लिक्विड और दूसरा है गैस. हमने मान लिया.
ओके, दोनों ही में Q है। अब Q के बाद या तो P आएगा या तो R आएगा, बस हमें इतनी सी बात डिसाइड करनी है, इसके अलावा हमने सेंटेंस पढ़ना भी नहीं है। तो लेट अस सी कि उसमें R आएगा कि P आएगा। अगर हम लोग R पढ़ते हैं, चलो, तो R में क्या बोला है, द गैस इज सो हैवी दैट यू कैन फेयरली ड्रिंक इट फ्रॉम द ग्लास एंड इट हैज एज यू नो अ टिंगल टैंगल टेस्ट। तो गैस के बारे में इन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी कि हम उसे ग्लास से डायरेक्टली पी सकते हैं, उसकी टिंगल टैंगल टेस्ट है। नाउ हमें पता नहीं चला कि ये होगा कि नहीं, सो लेट्स रीड P ऑल्सो वंस। द लिक्विड इज प्लेन वाटर as you will find out if you are too slow about drinking। अब देखो मैंने क्या बोला था, सेम वर्ड का रिपीट होना। कैसे, ये देखिए यहां पे दो चीजें रिपीट हुई थी, एक लिक्विड और एक गैस, है ना, एक लिक्विड और एक गैस। सबसे पहले किसकी बात हुई है, लिक्विड की, एंड देन गैस की। और P वाले सेंटेंस में भी सबसे पहले लिक्विड की बात हुई है और R वाले में फिर गैस की बात हुई है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिक्विड की हुई है, तो इट वुड बी फॉलोड बाय लिक्विड। द लिक्विड इज अ प्लेन वाटर एज यू विल फाइंड इफ यू आर टू स्लो अबाउट ड्रिंकिंग। उसके बाद गैस आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस में गैस है। द गैस इज सो हैवी दैट यू कैन फेयरली ड्रिंक इट फ्रॉम द ग्लास एज इट हैज एज यू नो अ टिंगल टैंगल टेस्ट। बात समझ में आ गई कि अगर कोई शब्द यहाँ पे है पहला और कोई शब्द यहाँ पे है दूसरा, तो आगे भी फर्दर वैसे ही बातें होंगी कि पहले इसके बारे में बात हो गई एंड देन दे मूव टुवर्ड्स दिस वन। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि P पहले आएगा, विच मीन्स हमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, QPSR हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट में कौन सा आना चाहिए, P के बाद S देन R। तो हमारा ये हो चुका था। अब द अदर इज सो हैवी sour an invisible gas that slips up through the water in little bubbles and collect in empty half of the glass। ये बोल रहे हैं, क्या बोला इन्होंने, पहले तो लिक्विड के बारे में बोल दिया कि लिक्विड कैसा है, प्लेन है वाटर। उसके बाद ये कब आपको प्लेन लगेगा, जब आपको जब आप उसे स्लोली पिएंगे। और फिर बोल रहे हैं कि द अदर, ये क्या है, द अदर इज हैवी विच मीन्स द गैस इज हैवी, इट इज sour, an invisible gas, see gas that slips up through the water in a little bubble and collects in the empty half of the glass। अब यहाँ गैस की बात हुई है, यहाँ किसकी बात हुई है, गैस की। अब देखो S6 कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड क्या है, लिक्विड है, एसिड कार्बोनिक एसिड, व्हाट इज दिस, द ओल्ड नेम ऑफ इट, किसका नाम है, इट मतलब किसका नाम है, गैस। इट इज मोर करेक्ट टू नेम इट when it is out of the water carbon dioxide। this is the gas, ये गैस है जो मैं बोल रही थी ना कि रिपीट होते हैं, ये गैस के बारे में यहाँ बताया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। चलो ये वाला देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, ऑप्शंस। इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या, ओके आर वाले दो हैं और SS वाले भी दो हैं, RR वाले दो हैं और SS वाले भी दो हैं, यानी कि हमें या तो R पढ़ना है या तो S पढ़ना है, हमें Q स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है और हमें P भी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना। S1 बोल रहा है द लायंस यूज्ड टू बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड एशिया, मान लिया। तो R वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है, टुडे दे आर दे, यहाँ पे क्या आया है, कौन सा शब्द आया है, दे किसके लिए आया है, लायंस के लिए। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, हम एक नाउन को फॉलो कर रहे हैं। नाउन को हमारा किसने फॉलो किया है, दे ने, मैंने सिखाया था ही शी दे इट रिप्लेस करने वाला है। तो टुडे दे आर रिलेटिवली रेयर स्पीशीज हो गया।
अब आर के बाद ईदर क्यू आएगा या फिर एस आएगा, तो लेट अस सी क्यू पहले। क्यू क्या बोल रहा है? इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग बाय द हंटर्स हैज बीन द कॉज ऑफ दिस ड्रास्टिक फॉल इन द नंबर्स। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बोल रहे हैं कि पहले लायंस जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अफ्रीका में और एशिया में, लेकिन अब उनका जो नंबर है रिलेटिवली कैसा हो गया है? रेयर हो गया है। रेयर के लिए ये दिस ड्रास्टिक आया है, रेयर के लिए ये ड्रास्टिक आया है। ठीक है, ये किसके लिए आया है? दिस इज फॉर रेयर नंबर ऑफ स्पीशी, मतलब डाउनफॉल आया है एक नंबर में, उसको ही डिनोट कर रहा है ये दिस। तो क्योंकि हंटर्स ने इनको किल कर दिया है तो इनका नंबर फॉल हो गया है। ठीक है, क्यू हो गया। फिर एस देखो, एस में क्या है? इफ द स्पीशीज सर्वाइव्स एट ऑल इट विल बी ओनली इन नेशनल पार्क्स। ये कहाँ पे रहेंगे? नेशनल पार्क्स में रहेंगे। और पी को देखो, देयर आर स्पेशल फॉरेस्ट जोन्स। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? नेशनल पार्क्स। ये स्पेशल फॉरेस्ट जोन ही तो होते हैं, स्पेशल फॉरेस्ट जोन्स यही तो होते हैं। कोई नेशनल पार्क हो गया, कोई बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये स्पेशल जोन्स ही तो होते हैं। तो मैंने जो सिखाया था कि सिनोनिम्स आते हैं वर्ड्स के, अगर वो एग्जैक्ट नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसे कैच कर लेंगे कि ओके नेशनल पार्क, दिस इज ओनली द स्पेशल फॉरेस्ट जोन सेट असाइड फॉर वाइल्ड लाइफ इन वेरियस कंट्रीज। ये हो जाएगा हमारा पी। और इसके अलावा नो हंटिंग इज परमिटेड इन सच रिजर्व्ड एरिया। विच एरिया? स्पेशल फॉरेस्ट जोन एरिया। ये रिजर्व्ड एरिया मतलब क्या है? यहाँ पे इस रिजर्व्ड एरिया का मतलब क्या है? रिजर्व्ड एरिया मतलब स्पेशल फॉरेस्ट एरिया, विच मीन्स हमने ये क्या किया है? करेक्ट किया है। नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन। In question number 84, we have S, R, P, Q. Everything is different. Here in everything is different. So we'll give a read to, and now our first trick gets failed here. क्योंकि मैंने क्या बोला था? रिपीट होनी चाहिए, पर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। Now let's see statement number 1. It say, what Martin Luther King, the peaceful warrior, and his followers suffered, it is very difficult to describe. ठीक है, मान लिया। Now अब हमें इसमें लिंक्स ढूंढने पड़ेंगे कि किसके बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले पी है, इसके बाद आ गया पी में बोल रहे द पुलिस। अब द पुलिस कहाँ से आ गया है अचानक से? पहले मार्टिन ल्यूथर किंग के बारे में बात हो रहा है और उनके फॉलोअर्स के बारे में बात हो रही है। दो सब्जेक्ट्स हैं, दो नाउन्स है, एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे एक पुलिस का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो तीन सब्जेक्ट्स का खुल जाना स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में ही ब्लेंडर माना जाता है। पी नहीं होगा, पी काट देंगे। फिर आप आएंगे आर पे, पी के बाद क्योंकि ओके चलो क्यू ले लेते हैं। तो क्यू में क्या बोल रहे हैं? द लॉ कोर्ट्स आ गया अब अचानक से, कहाँ से आए? और द भी लगा हुआ है, विच मीन्स इट इज अ नाउन, अगेन अनदर नाउन, कट। क्यू इज ऑल्सो कट। अब हमारे पास बच गया है आर यहाँ पे और एस, दोनों ही में दे बोल रहे हैं। नाउ अब पता चल गया कि ये दे किसके लिए आया है? फॉलोअर्स प्लस मार्टिन ल्यूथर किंग। यहाँ भी अब आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को पढ़ करके कि कौन सा वाला होगा। अगर आपने एक पहचान लिया तो आपका काम बन गया। यही मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब ये सफल वाले आते हैं ना, जब शफल्ड होते हैं पूरी तरह, तो या तो ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं या तो ये बहुत इजी पीजी होते हैं। आपको सिर्फ एक ढूंढना है एंड यू आर गुड टू गो। तो आर अगर मैं पढ़ूँ तो दे वर अब्यूज्ड एंड स्टोन्ड बाय द मॉब, स्लैप्ड एंड किक्ड बाय द पुलिस, ऐसी बोली हुई है बात। और एस में बोल रहे हैं दिस सफर्ड एंड टॉलरेटेड ऑल दिस। क्या अभी तक कुछ देखा है कि उन्होंने बहुत सारा सफर किया? क्या क्या सफर किया? ऑल दिस, व्हाट ऑल दिस? नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि उन्होंने क्या क्या सफर किया अभी तक। दे हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटेंसेस। इसके ऊपर कुछ होगा कि इन्होंने ये सारी चीजें से ये लोग जा चुके हैं, जूझे हैं, सफर किए हैं। तो मैं एस भी एलिमिनेट कर दूंगी। मैं आर के साथ जाऊंगी कि देवर अब्यूज्ड, उनको अब्यूज करा गया, उन पे पत्थर फेंके गए, उन्हें स्लैप किया गया, किक किया गया, किसके द्वारा? पुलिस द्वारा। ओके देन क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने बोला था रिपीट होंगे, यहाँ पुलिस आ रहा है, अगेन पुलिस। देन आर के बाद पी में बोल रहे हैं द पुलिस यूज फायर होर्सेस एंड फेरोशियस डॉग्स टू राउट देम। इसके अलावा क्यू में देखो द लॉ कोर्ट सेंड देम टू सॉलिटरी confinements where not a ray of sun entered। यही तो सारे प्रॉब्लम्स है ना जिसके बारे में डिस्क्राइब हो रहा है एस वाले सेंटेंस में।
उनको जेल में भेज गया, पुलिस ने उन पे डंडे बरसाए, एंड देन दे सफर्ड, राइट, दे सफर्ड all of these and tolerated all of this without lifting hand in self defense, बिना हाथ उठाए अपने सेल्फ डिफेंस में. अब S6 देखो, for they had taken an oath to refrain from the violence of fist, tongue and heart. बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कसम खाई हुई थी कि भाई हम अपना हैंड नहीं उठाएंगे, हम बिल्कुल वायलेंस नहीं करेंगे, हम अपने जुबान से कोई गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, और इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया. तो आंसर नंबर बी हो जाएगा. आई होप ये सारी चीज़ें सेंस बनाई हो, मेरे ट्रिक्स आपको काम आएंगे अगर आप इसे 100% या 90 to 95% भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे. तो ये मेरी पर्सनल बनाई हुई और सीखी हुई टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल करके मैं हमेशा इन एरियाज़ में एज लिया करती थी अगर मेरा वोकैबुलरी पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और कोई डाउट्स है और किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं ट्रिक्स के साथ अगेन आऊँ और PYQs करवाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट्स. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू एंड जय हिंद.